Hello students, once again I welcome you all to your own math stimulus. Children, today in this module you are going to learn a very important part of maxima and minima, that is its application. And what is application of maxima minima? Word problems based on maxima minima. Children, see, in board's examination 6 marker question comes from word problem, and we need to learn what is the working steps to solve these word problems. This is very important. If you will learn how to recognize problem, how to start the sum, then it will be an easy cake for you to solve word problems based on maxima minima. So here I am giving you working steps to solve word problems based on maxima minima. Children, here I am giving you 5 steps to solve word problems, and these are my R, S, T, U, V steps. What is R? Because step 1. First of all, whatever word problem is given to you, recognize your sum. Recognize means find in the sum what is to prove and what is to find. Either it can ask to prove or it can ask to find. So check what is this, what is to prove, what is to find. Which figure sum is talking about? Of which figure? Square, rectangle, cylinder, cone. About which figure question is talking about? What is given in the question? Children, what will be given in the question will treat it as a constant. And what is to maximize and minimize? These 4 points. It may happen only 3 may be there or all 4 may be there. So in the first step you need to recognize your sum. If you recognize all these terms, a big sorting you have done. What is the step 2? S for start your sum with the formula, which is to maximize or minimize. Question may ask maximize area, then start with the area. Question may ask maximize volume, then you will start with the volume. You will start with the formula, which is to maximize and minimize. So first step, recognize R. Second step, start with the formula. Now what is the step 3? Step 3 is T for take care of the formula in step 2. Children, you will get a formula in step 2. Area, volume, surface area, total surface area, perimeter. Whatever formula is to maximize and minimize you have formed in step 2, in step 3 you need to convert that formula in single variable with the help of whatever given in the question, because whatever given, that is constant for you in that sum. So third step पर तुम्हें फॉर्मूले को, जिसमें 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, 3 नहीं होंगे, मैक्सिमम 2 ही होंगे, आपको उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन, वट एवर गिवन टू यू. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दैट फॉर्मूला इन single variable, that will become fx of that question. This is your third step. Now what is fourth step? RST. Fourth step is U for use derivative to find critical point. U for use derivative. किसका डेरिवेटिव? आपने लास्ट स्टेप में फंक्शन बना लिया है fx. Now find f prime x. Put f prime x is equal to 0. और आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से पता है, जब भी आप f prime x को 0 रखते हो तो आपको क्या मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स. लेट
आपको C1, C2, C3 मैक्सिमम आपको एक या दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, आप चेक करोगे. सो लेट आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है C. सो फोर्थ स्टेप, यूज डेरिवेटिव टू फाइंड critical point. And what is step fifth? View. V for view. View double derivative is less than 0 or greater than 0 at the critical point which you have get at step 4. Check view double derivative at C whether it is less than 0 or greater than 0. If less than 0, it is maxima. If greater than 0, it is minima. So children, these are the 5 steps. Recognize your sum. Start with the formula which is to maximize, minimize. Take care of the formula. It must be in single variable with the help of given in the question. अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन कर लेना बेटा स्टेप 3 तक, उसके बाद वेरी इजी. हर क्वेश्चन में आपको उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. क्रिटिकल पॉइंट पर आपने डबल डेरिवेटिव को चेक करना है, वो लेस देन है या ग्रेटर देन है 0 से. एंड देन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. यू हैव जस्ट किल्ड द सम. नाउ सी, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. व्हाट इज इट? सी, फाइंड द सम of two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. So what is given here? Given is sum of two number. What is given? तो पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है? What is the first step? Step 1 is to recognize the problem. हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हमें रिकॉग्नाइज करना. तो व्हाट इज गिवन हेयर? गिवन इज सम ऑफ टू नंबर. मीन्स लेट करो x एंड y बी द टू नंबर. तो सम ऑफ टू नंबर इज गिवन 24. सो लेट क्या करना है आपको? x एंड y बी द टू नंबर्स. और आपको क्वेश्चन में गिवन इज सम ऑफ टू नंबर इज 24. हुज प्रोडक्ट is as large as possible. Large means maximize क्या करना है? प्रोडक्ट को. तो आपको क्वांटिटी जज करनी है. व्हाट इज टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज? फर्स्ट स्टेप के अंदर ही. तो लेट P बी द प्रोडक्ट. तो P क्या होगी? प्रोडक्ट होगी x इंटू वाई. और आपको इस प्रोडक्ट को करना है मैक्सिमाइज. सो आपने क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया. यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द प्रॉब्लम. You are given sum of two number or you need to maximize the product. Now what is the step 2? Step 1 पर you are recognizing your sum and step 2 पर you are starting with the formula which is to maximize or minimize. तो आपको आपका फॉर्मूला मिल चुका है, that is product is equal to xy. But अब आपने टेक केयर करना है, दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके पास x एंड y दो वेरिएबल हैं. तो आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन. व्हाट इज गिवन टू मी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 24. सो फ्रॉम हेयर आप निकालो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू. लेट मैंने निकाली y इज 24 माइनस x. तो इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ गिवन दिस वे मैंने y की वैल्यू निकाली और उसे मैं यहाँ इक्वेशन 2 में रख रही हूँ. फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2. तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा? p क्या बन जाएगा? x इंटू 24 माइनस एक्स. इस तरीके से मैंने इसे स्टेप 1 में जो गिवन दिया था उसकी हेल्प से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया. तो अब मेरे पास क्या आ गया? देखो x है 24x माइनस एक्स स्क्वायर. बस इतना अगर क्वेश्चन आपका बन गया, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर मेन फंक्शन जो कि x में है. अब आपने स्टेप 3 पर सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है. फंक्शन बन गया. फंक्शन बनने के बाद यूज डेरिवेटिव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. अब इसका डेरिवेटिव निकालोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो. 24 माइनस 2x इसको इक्वल टू 0 रखो. तो 24 माइनस 2x को आपने रखना है 0 के इक्वल. तो दिस इंप्लाइज आपका x क्या आ जाएगा? 12. तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 12. ये क्या है बेटा? आपका x जो भी आपका यहाँ वेरिएबल होगा, x, r, h,
आपको जब आप डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखोगे तो उसी की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी और वही आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपने बाय यूजिंग डेरिवेटिव यू हैव फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इस क्रिटिकल पॉइंट पर आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना है। देखो दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव, अब आपने इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो आपका 24 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x का -2। इसमें डायरेक्टली नेगेटिव आ गया है, वेरिएबल बचा ही नहीं है, तो इट इज ऑलरेडी लेस देन 0। इफ डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0 तो अब आप इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 12 पर निकालो या किसी भी कांस्टेंट पर निकालो, सेम ही रहने वाली है। अगर यहाँ x वेरिएबल बचता तो आप ये पुट करके देखते, बट यहाँ तो ऑलरेडी कांस्टेंट फंक्शन मिला है आपको, तो आप यहाँ डायरेक्टली कंक्लूड कर दोगे एज डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। कब? हमसे क्वेश्चन ने फाइंड करने को कहा है, फाइंड टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम कब? व्हेन x इज 12, और अगर x 12 है तो यहाँ से y क्या आएगा, दूसरा नंबर आपका पुट करोगे आप वैल्यू इस इक्वेशन में, यहाँ इक्वेशन 1 में, तो y आ गया 12। तो दो नंबर क्या हो गए आपके 12 एंड 12। दीज यू हैव फाइंड टू नंबर्स जिनका सम 24 है एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। सो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ये आपकी 6.5 का 13 क्वेश्चन है जो भी आपको मैंने समझाया है। तो इस तरीके से ये वर्किंग स्टेप्स हैं जो मैंने आपको स्टेप 1 स्टेप 2 लिखकर आपको समझाए हैं सारे। आपको व्हाट इज द एग्जैक्ट वे, आपको यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे लिखने नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको जस्ट समझा रही हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ स्टेप 1 2 3 डाले। अदरवाइज दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट। लेट p बी द प्रोडक्ट, px इंटू y है, ये सम है, यहाँ से आपने एक वेरिएबल में वैल्यू निकाली, पुट की एंड आपने कंटिन्यू किया और आपका क्वेश्चन हो गया। See one more question. This is question 15 of exercise 6.5. Question says find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and product किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, x square into y 5. This product is maximum. तो बेटा यहाँ क्वेश्चन ने x एंड y गिवन किया आपको ऑलरेडी, तो यहाँ लेट करने की जरूरत नहीं है नंबर्स को, तो लेट कर रहे हैं p इज द प्रोडक्ट, दिस इज p प्रोडक्ट, हमने यहाँ ये लेट किया है। तो सो इफ p इज द प्रोडक्ट, तो आपने लेट कर लिया है, सो p इज द प्रोडक्ट, ये p प्रोडक्ट है। गिवन क्या है, सम ऑफ नंबर इज 35, दिस इज योर गिवन, यू कैन सी ये गिवन है आपको। तो जो आपका प्रोडक्ट है मैक्सिमाइज करना है, ये आपको मैक्सिमाइज करना है। आप क्वेश्चन की रिकॉग्निशन कर रहे हैं स्टेप 1, व्हाट इज टू मैक्सिमाइज, व्हाट इज टू गिवन, दिस इज टू मैक्सिमाइज एंड दिस इज गिवन टू यू। सो अब सेकंड स्टेप पे आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज टू मैक्सिमाइज। ये दो वेरिएबल में है, गिवन की हेल्प से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमने निकाला y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, और इसे मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन 1 में, तो x स्क्वायर y की जगह रख दिया 35 माइनस एक्स की पावर 5, y के प्लेस पर 35 माइनस एक्स। तो दिस इज योर मेन फंक्शन जो सिंगल वेरिएबल में आ गया। तो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, उस फॉर्मूले से शुरू किया जो आपने मैक्सिमाइज करना है और उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। तो आपके 3 स्टेप का काम पूरा हो गया। अब तो बस dp/dx निकालो, 0 रखो और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। जो वैल्यू आई है आपकी उसको डबल डेरिवेटिव में रखो। बेटा यहाँ डबल डेरिवेटिव में ना आपको पॉइंट जब रखना है क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द साइन। देखो डबल डेरिवेटिव में यहाँ माइनस आ रहा है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, और आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि आपका क्रिटिकल पॉइंट 10 आया है। जब आप 10 यहाँ रखोगे तो देखो ये पॉजिटिव 35 माइनस एक्स का मतलब y भी पॉजिटिव है आपका, ये भी पॉजिटिव है 25। इस नेगेटिव की वजह से ये टर्म नेगेटिव, इस नेगेटिव की वजह से ये टर्म नेगेटिव होगी अगेन,
क्योंकि यहाँ नो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगी और 70 माइनस 7x भी ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास ओवरऑल नेगेटिव टर्म बचने वाली है लेस देन ज़ीरो। तो लेस देन ज़ीरो मैक्सिमा, तो आपको यहाँ वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो यहाँ बहुत सिंपली आ गई है सॉल्व करके। अदरवाइज यू जस्ट फोकस ऑन द साइन कि ओवरऑल आपके पास नेगेटिव टर्म बचेगी या पॉजिटिव बचेगी। सो आपके पास यहाँ नेगेटिव लेस देन टर्म आ रही है, लेस देन ज़ीरो, तो प्रूव हो गया। P क्या है आपका? P आपका मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 10। आपसे दोनों नंबर फाइंड करने को आए थे, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर, तो यदि एक 10 है तो दूसरा 35 माइनस 10 25। इस तरीके से आपका ये आंसर मिल गया आपको दोनों नंबर। अब आपके क्वेश्चन 14 एंड 15 ऑफ 6.5 एक्सरसाइज आपके सिमिलर है, आपको खुद से करने हैं। दीज आर टू प्रैक्टिस सम्स फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। ओके, क्वेश्चन सेज शो दैट all the rectangles of given parameter the square has the greatest area। इस क्वेश्चन पे आकर क्वेश्चन का लेवल, वर्ड प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन पैरामीटर, व्हाट इज गिवन, पैरामीटर इज गिवन ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर हैज ग्रेटेस्ट एरिया। तो पहले रिकॉग्नाइज करिए आप फर्स्ट स्टेप पर। स्टेप 1 रिकॉग्नाइज योर सम। तो स्टेप 1 में पैरामीटर गिवन है किसका, सबसे पहले देखो फिगर, फिगर क्या आपकी रेक्टेंगल, फिगर को आपने जज कर लिया, दिस इज अ रेक्टेंगल, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से आपको लेट करना है जरूर। आपने फिगर जज कर ली। अब व्हाट इज गिवन, गिवन इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। सो बेटा जो भी गिवन है इसका मतलब p आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा इस क्वेश्चन में, p वेरिएबल नहीं होगा आपका। और गिवन का यही फायदा है कि दैट इज कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सम। तो मार्क गिवन एज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी हमें क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, स्क्वायर हैज द ग्रेटेस्ट एरिया, हमने एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, x इंटू वाई। अब इस स्क्वायर का क्या मतलब है, आपने ये लास्ट में प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर है, मीन्स ये x और y अलग अलग नहीं है, ये यहाँ x इज इक्वल टू वाई है। अगर x इज इक्वल टू वाई हो गया तो इसका मतलब स्क्वायर बन गया ना। आपको ये टू प्रूव करना है, इसका मतलब ये है। तो आपने अब यहाँ पूरे क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर लिया, आपको क्या गिवन है, क्या मैक्सिमाइज करना है और क्या प्रूव करना है। ये है इसके इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपको पता है आपको सेकेंड स्टेप पे आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू नीड टू टेक केयर। आपको शुरुआत करनी है यहाँ से, क्वेश्चन शुरू होगा उस टर्म से, उस फॉर्मूले से जो आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो आपको ये फंक्शन लेके चलना है और इसको दो वेरिएबल में छोड़ना नहीं है, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप यहाँ से y या x की वैल्यू निकाल लो। जनरली हम x में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से 2y आपके पास आएगा p माइनस 2x और y आपका आ गया p माइनस 2x अपॉन 2। अब ये वैल्यू y की गिवन से उठाकर मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ। तो मेरा a बन जाएगा x इंटू p माइनस 2x अपॉन 2। तो a मेरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, px अपॉन 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मेरा एरिया मैक्सिमाइज करने वाला, दिस इज माय फंक्शन बना। ये फंक्शन है जो सिंगल वेरिएबल में है। अब बस फोर्थ स्टेप पर आ गए हो आप कि आपका फोर्थ स्टेप है, अब आप यूज डेरिवेटिव, फंक्शन बन चुका है, डी ए अपॉन डी एक्स निकालो, उसको ज़ीरो रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव में चेक करो कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। बेटा आपका मेन क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शन बनाने तक का है, उसके बाद तो सारे स्टेप आपके सेम है। सी नाउ सी द क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन। देखो यहाँ तक मैं आपको ले आई थी, आपने वैल्यू रख ली थी और ये फंक्शन आपका बन गया था। अब सिर्फ आपने
डिफरेंशिएशन निकाला, 0 रखा, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट पे पहले आपने डबल डेरिवेटिव निकाला। अगर dA/dx ये है तो डबल डेरिवेटिव आपका p/2 का 0 और -4x/2 का -2, तो ये भी अगेन कॉन्स्टेंट ही मिला आपको विच इज लेस देन 0। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका एरिया, एक एरिया क्या है आपका मैक्सिमम हो गया क्योंकि वो लेस देन 0 है। और कब? व्हेन x इज इक्वल टू p/4। x की वैल्यू आपको जो भी गिवन है वहाँ आप पुट करोगे, तो आप पुट करो x की वैल्यू। अगर x p/4 है आपका तो आपके पास क्या आ रही है? p इज मैक्सिमम व्हेन, तो x इज इक्वल टू p/4 आप कहाँ रखोगे? इक्वेशन 2 में। जो भी हम कन्वर्ट करते हैं वहाँ आप पुट करो। यहाँ x को रखोगे p/4 तो y भी आपके पास p/4 ही आएगा। तो x p/4 y p/4, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। तो प्रूव कर दिया ना आपने जो हमें प्रूव करना था कि स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, क्योंकि x इज इक्वल टू y आ गया। तो ऑफ द रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पैरामीटर स्क्वायर हैज ग्रेटेस्ट एरिया। ये कंक्लूडिंग लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर लिखनी चाहिए आपको। और ये लेट पार्ट भी आपने ज़रूर लिखना चाहिए। ये हाफ ऑफ मार्क की वेटेज रखते हैं बेटा। फिगर ज़रूर बनानी चाहिए, रफ फिगर। ऐसा नहीं है आपको बहुत ही फाइन फिगर बनाने हैं। यू मस्ट ड्रॉ अ रफ फिगर डिपिक्टिंग विद ऑल द वेरिएबल्स। उसकी लेबलिंग ज़रूर करनी चाहिए आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। चलो अब देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। अब अगेन आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप किया है मैंने। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिगर क्या आ रही है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। स्टेप 1 पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स सिलेंडर, आपको सिलेंडर लेकर चलना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन एट द टॉप मीन्स लाइक ऊपर कोई टिन कंटेनर जो सर्कुलर शेप का, इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, लिड नहीं है, ओपन है यहाँ से। सो ओपन एट द टॉप ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अगर आपने सिलेंडर लिया है तो इसके पैरामीटर्स हमें मार्क करने पड़ेंगे। तो लेट करोगे क्या आप? r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो पहले आपने पैरामीटर्स ले लिए। अब गिवन सरफेस एरिया रिकॉग्निशन कर रहे हैं हम सब की गिवन क्या है? सरफेस एरिया। s से लिखो शॉर्ट फॉर्म में या a से लिखो। सपोज मैं s से लिख रही हूँ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, बट ये तो ओपन है ऊपर से, तो आपका ये एरिया इंक्लूड होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। तो सरफेस एरिया हो गया 2πRh प्लस πr²। अगर यहाँ ये वर्ड ओपन ना होता, क्लोज्ड सिलेंडर होता या सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर होता, तो आपका यहाँ 2πr² आता। तो गिवन आपको ये है। और अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आपको मैक्सिमाइज क्या करना है बेटा? एब्सोल्युटली राइट, आपको मैक्सिमाइज वॉल्यूम करना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए πr²h इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब टू शो या टू फाइंड आपको क्या करना है? ये h आपकी r के इक्वल आनी चाहिए एट द एंड। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। स्टेप 2 पर मेक श्योर आपने शुरुआत कहाँ से करनी है? जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो आपने यहाँ से इस फॉर्मूले से शुरुआत करनी है। अब अगेन इसमें r और h 2 वेरिएबल हैं। अब क्या करोगे? गिवन का इस्तेमाल करके इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, ईदर इन r और h। अब देखो मुझे यहाँ r² नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से अगर r² की वैल्यू निकालूँ तो देखो क्या होगा? s माइनस 2πRh अपॉन पाई, मुझे r² की वैल्यू मिलेगी। चिल्ड्रन सी r² इज इक्वल टू s माइनस 2πR। देखो r यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या सिंगल वेरिएबल में हुआ? r², यहाँ भी r आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो आपका ये फंक्शन देखो, मैं यहाँ रख के दिखाती हूँ। मैंने रखी वैल्यू r² की वैल्यू अपनी इक्वेशन 2 में, जो भी मुझे मैक्सिमाइज करना है, s माइनस 2πRh अपॉन पाई इंटू में h। तो अब देखो
आपका ये फंक्शन v बना, अभी भी r और h दोनों मौजूद हैं, सिंगल वेरिएबल कन्वर्जन नहीं हुई ना, तो इसका मतलब ये स्टेप मेरा गलत है, मुझे यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए। ये मैं इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ बेटा, क्योंकि आपको खुद से देखना है कि आपको क्या रिमूव करना है। आपके पास आर स्क्वायर और एच है, आर स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, अब मैं एच की वैल्यू निकालूंगी, इसलिए मुझे यहाँ ये ही करना है। तो मैं यहाँ से एच की वैल्यू निकालूंगी, तो मेरे पास क्या आएगी, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और ये मेरी एच की वैल्यू होगी। अब मुझे इस h की वैल्यू को अपनी इक्वेशन 2 में रिप्लेस करना है, तो ये स्टेप गलत था। तो अब वॉल्यूम क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, h रखा मैंने s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब देख सकते हो, देखो सिंगल वेरिएबल r में वैल्यू आ रही है, तो अब पूरा का पूरा फंक्शन आपका r r r, s तो गिवन है तो इसलिए कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सिर्फ r वेरिएबल है। सो आपको डिफरेंशिएशन, ये स्टेप इतना ज़रूरी क्यों है बेटा, क्योंकि हम 12th में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल ही कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये फंक्शन में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उससे आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और वो निकालोगे कब, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो डिफरेंशिएशन करते समय सिंगल वेरिएबल में फंक्शन होना चाहिए। सो यू मस्ट टेक केयर फॉर्मूला विच यू आर रिसीविंग टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। थर्ड स्टेप, तो आपको ये मिल चुका है, आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो अपने लिए। आपके पास क्या आएगा, देखो r और पाई कट रहे हैं आपके बाहर, और आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो s अपॉन 2r माइनस पाई r क्यूब अपॉन 2, ये आपका v आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, और क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आप डबल डेरिवेटिव चेक करो। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ तक लेकर आ गई हूँ, मैंने ये कन्वर्ट कर लिया। डिफरेंशिएशन आप निकालोगे, हम यहाँ आ गए थे, अब डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 रख रहे हो, तो आपके पास यहाँ से आपको जब भी आप इक्वल टू 0 रखोगे तो आप वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। बेटा मैंने स्मॉल r लिया था, इन्होंने यहाँ कैपिटल R और कैपिटल H में बात की है। सो आप जब डिफरेंशिएशन आप r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो यहाँ से r की ही वैल्यू निकालनी है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा s भी वेरिएबल r भी वेरिएबल, क्या करना है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू आनी है आपकी, और s तो आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है। सो आपने डिफरेंशिएशन किया इसका r s अपॉन 2, r आपका वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन आ गया s अपॉन 2, यहाँ से पाई 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, डिफरेंशिएशन आया, इक्वल टू 0 रखोगे, s इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू आ गई अंडर रूट s अपॉन 3 पाई। ये बेटा आपका क्रिटिकल पॉइंट आया। सो दिस इज योर c क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव निकालो, उस पर रख के चेक करो, डबल डेरिवेटिव पर निकालना, r यहाँ रखोगे तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको बता रहा है लेस देन 0, तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम, क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया। अभी हमने इसमें यहाँ ये प्रूव करना था हाइट इज इक्वल टू रेडियस, तो मैक्सिमाइज करने के बाद आपने ये स्टेप भूलना नहीं है, आपने क्या शो करना है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा आपने उसे गिवन से जो आपकी इक्वेशन बनती है उसमें पुट करना है। तो आपको यहाँ से मिला था ये r इज इक्वल टू दिस, इसे पिछले स्टेप पे जाओ तो s इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर है, इसको आपने कहाँ रखना है, इक्वेशन 2 में आपने ये h निकाला था ना, यहाँ पुट करना है आपने, s की वैल्यू यहाँ रख दो आप। तो 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, इसे सॉल्व करोगे आप तो 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, तो सिर्फ r बचेगा। मीन्स क्या आ गया आपके पास, हाइट इज इक्वल टू रेडियस जो आपने शो करनी थी। सो रिक्वायर्ड सिलेंडर है हाइट इज इक्वल टू रेडियस। तो इसी तरह के बेटा आपके 6.5 का क्वेश्चन 20 और 21 है। देखो क्वेश्चन 20 में क्या गिवन है आपको, मैंने क्वेश्चन लिखा है आपको कि राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन सरफेस एरिया। अब आपको सरफेस एरिया गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम, पिछले क्वेश्चन में आपका ओपन सिलेंडर था, लेकिन यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अब ये खुद जज करो आप कि क्या चेंज हुआ। एंड व्हाट इज टू प्रूव हियर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, मीन्स h इज इक्वल टू 2
आर आपको शो करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने h इज इक्वल टू आर प्रूव किया है। सिमिलरली इसमें गिवन वॉल्यूम तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम दे दिया है, तो हम जहाँ v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बनाते हैं वहाँ वॉल्यूम आप 100 रखेंगे, ये चेंज हो जाएगा आपका बस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैन विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम दिया है, सरफेस एरिया मिनिमम करना है, तो डायमेंशन मीन्स सिलेंडर के डायमेंशन क्या होंगे एच एंड आर, तो आपको एच एंड आर बताने हैं। फाइंड डायमेंशन मीन्स एच एंड आर बताओ। तो आई एम श्योर आप बहुत आराम से कर लोगे क्वेश्चन। सी वन मोर क्वेश्चन। ओके, अब नाउ व्हाट क्वेश्चन से शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। अब यहाँ से बेटा दो फिगर शुरू हो गई आपकी कि एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड का मतलब कि ये x और y इसकी लेंथ एंड विड्थ होगी गिवन सर्कल। गिवन सर्कल मीन्स सर्कल में कि क्या पैरामीटर है, रेडियस, इसमें r कांस्टेंट होगी। तो पहले फिगर आपने जज की, रिकॉग्निशन में क्या है आपका, फिगर इज दिस। पैरामीटर्स क्या हैं आपके, x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये आप लेट करोगे। और यहाँ पर क्योंकि गिवन सर्कल है तो r रेडियस आपकी कांस्टेंट ट्रीट होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एंड द स्क्वायर हैज मैक्सिमम पैरामीटर, मीन्स आपको पैरामीटर लेके चलना है। आपकी फिगर कौन सी लेके चलोगे, मैक्स स्क्वायर हैज, आपको प्रूव करना होगा x इज इक्वल टू वाई। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, तो बस अब यहाँ पे क्या है कि हमने x इज इक्वल टू वाई प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर मैक्सिमाइज पैरामीटर, तो मैक्सिमाइज पैरामीटर, पैरामीटर आपका ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y, और एंड में आपको कहाँ पहुँचना है, x इज इक्वल टू वाई, ये टू फाइंड करना है, टू शो करना है आपको। तो क्वेश्चन की रिकॉग्निशन पूरी हो गई बेटा, तो एक मेजर पार्ट आपके क्वेश्चन का हो गया। अब क्या करोगे, अब तो आपको पता ही है कि आपको इससे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया, आपको गिवन सर्कल है, r से आपको इसे रिप्लेस करना है r का यूज़ करके। तो बेटा यहाँ पे किस तरीके से आपको इस तरह से गिवन पैरामीटर का यूज़ करना है। देखो यू कैन सी ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, ये डायगोनल हो गया। तो अब आप यहाँ से इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अपनी जजमेंट से बनानी पड़ी है, ये गिवन है आपका। तो अब यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालोगे, तो y आपके पास हो गया √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है वैल्यू, इससे आप रिप्लेस करोगे y की जगह पर, तो आपका फंक्शन p कन्वर्ट हो जाएगा। देखो आ गए ना आप सिंगल वेरिएबल में, यस, x r तो हमारा कांस्टेंट है, उससे तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अब क्या करोगे, dp/dx, फिर 0 रखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डबल डेरिवेटिव को चेक करो कि इस पॉइंट पर वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। लेस देन 0 मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमम पैरामीटर प्रूव करना है तो वो लेस देन 0 ही आएगा। और फिर आप जो भी पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट वो यहाँ रखोगे, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन से बनती है, और उसमें चेक करोगे। सी होल क्वेश्चन, सी देखो ये रही वो इक्वेशन आपकी वाई स्क्वायर की वैल्यू, ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन आपकी, यहाँ डिफरेंशिएशन निकाला आपने, इक्वल टू 0 रख के आपका ये क्रिटिकल पॉइंट आया। डबल डेरिवेटिव सिंप्लीफाई किया आपने, वैल्यू पुट करके देखी x की, आपके पास देखो ये नेगेटिव साइन ही आपको बता रहा है आपका x क्या था, √2r, तो आपने यहाँ वैल्यू रख दिया सारा। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, इतना सॉल्व करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखो ये पॉजिटिव, r स्क्वायर पॉजिटिव है ही है, तो ये नेगेटिव लेस देन 0 ही आएगा, लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स नो नीड टू डू दीज 2 स्टेप्स। लेस देन 0 कंक्लूड कर दो, p मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 2r, ये वैल्यू इक्वेशन 2 में रखो, इक्वेशन 2 हमेशा हमारी वही बन रही है जो हम गिवन से बना रहे हैं, वहाँ से हमारे पास आएगा x इक्वल टू y, तो प्रूव हो गया हमारा रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन का लेआउट 100% समझ आ चुका है।
सो आपकी 6.5 का क्वेश्चन 19, शो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, सर्कल में रेक्टेंगल्स हैं, देन स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया, यहाँ आपको एरिया मैक्सिमम करना है। और ये क्वेश्चन देखो इतने सालों में आ चुका है, तो आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। तो आई एम श्योर चिल्ड्रन आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम अगले पार्ट 2 में थोड़ा लेवल अप करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच।